Hello and welcome to Amazon Academy. Today, title of video is radical axis. In this video, we'll discuss about radical axis. Then we'll discuss radical axis in different positions. And the last we'll discuss properties of radical axis. तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं radical axis होता क्या है. It is the locus of a point which moves in such a way that the lengths of the tangents drawn from it to two circles are equal. यानी हम दो सर्कल्स पर इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे और दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम आएगी. Means let's say these are the two circles, then if we draw the tangents PA and PB, then these two lengths will be equal. PA is equals to PB. Okay, then locus of such point is called radical axis. Now let the equation of two circles are x square plus y square plus twice g1x plus twice f1y plus c1 is equals to 0 and x square plus y square plus twice g2x plus twice f2y plus c2 is equals to 0. Then from the definition of radical axis we know PA is equals to PB. अब भाई P का लोकस निकालना है तो हमने P को मान लिया h, k. अब वहां से लेंथ ऑफ द टेंजेंट फर्स्ट सर्कल पर क्या होगी रूट s1. So under root h square plus k square plus twice g1h plus twice f1k plus c1 is equals to सेकेंड सर्कल पे के लिए निकालें तो under root h square plus k square plus twice g2h plus twice f2k plus c2 दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो what will get twice g1 minus g2h h square k square कैंसिल हो गए twice f1 minus f2k plus c1 minus c2 is equal to 0. Now last step, replace hk by x and y. So x, y. तो this is the equation of radical axis. Now अब ध्यान से देखिए इससे क्या हुआ जब आपने s माइनस एच डैश करेंगे. बेसिकली हमने एक सर्कल से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ रही है s माइनस एच डैश इज इक्वल टू 0. ओके, सो याद रखिएगा रेडिकल एक्सिस s माइनस एच डैश इज इक्वल टू 0. इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे तो दोनों सर्कल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए बिकॉज वी वांट अ लीनियर इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन बिकॉज रेडिकल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन. चलिए अब हम देखते हैं रेडिकल एक्सिस इन डिफरेंट पोजीशंस. रेडिकल एक्सिस डिफरेंट पोजीशंस में क्या क्या होती है. देखिए ये वाला केस लेते हैं जब दो सर्कल दूर दूर हैं यानी neither intersect nor touches the circle, then it will be a line passing between the two circles. Line passing between the two circles. Okay, एक लाइन होगी जो कि दोनों सर्कल्स के बीच से पास करेगी. When I say between, then it not necessary that it will pass through the midpoint. वो कहीं से भी पास कर सकती है बट बीच में से जाएगी. ओके, इन दिस केस वी कैन सी फ्रॉम द फिगर इट विल बी द कॉमन टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, यहां पे तीन कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं हम लेकिन तीनों रेडिकल एक्सिस नहीं होंगी. जहां दोनों सर्कल टच कर रहे हैं वहां पर एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. नाउ हियर अब देखिए आप सर्कल के अंदर से तो टेंजेंट ड्रॉ कर नहीं सकते तो जो रेडिकल एक्सिस है वो ये है यानी इट इज विल से लाइन कंटेनिंग द कॉमन कॉर्ड. line containing the common chord. This is called the radical axis. Okay, now here it is again common tangent at their point of contact. अब देखिए एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो रेडिकल एक्सिस विल लाई आउटसाइड बोथ द सर्कल्स तो इट विल बी अ लाइन लाइंग आउटसाइड बोथ द सर्कल्स. If two circles are concentric, then we'll say radical axis does not exist. Why? देखिए x square x जब आप s minus h dash is equal to 0 करेंगे तो x square कैंसिल हो जाएगा y square कैंसिल हो जाएगा.
2gx भी कैंसिल, 2fy भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0 एंड दैट रिप्रेजेंट्स नथिंग. सो रेडिकल एक्सिस विल डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सी यहां पे आप देखिए कि यानी अगर कंसेंट्रिक सर्कल है तो देयर एग्जिस्ट नो सच पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन ड्रॉ टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, so let's revise it quickly. If two circles are neither intersect nor touches each other, then radical axis will pass between the two circles. Then, if they touches each other either externally or internally, then common tangent at their point of contact. If they intersect each other, then line containing the common chord. If one circle lies completely inside the other, then line lying outside both the circles. And if there are concentric circles, then we'll say it does not exist. Okay. मूविंग ऑन, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस. देखिए, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स. देखिए, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेट से हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ट्वाइस g1x प्लस ट्वाइस f1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस g2x प्लस ट्वाइस f2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. तो बच्चों कॉमन कॉर्ड क्या आएगा, s माइनस एच डैश कर दीजिए. सो ट्वाइस g1 माइनस g2 इंटू एक्स प्लस ट्वाइस f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल्स टू 0. दिस विल बी द रेडिकल एक्सिस. नो व्हाट इज इट स्लोप, स्लोप आ रहा है हमारे पास, इसका नाम रख देते हैं m1. m1 क्या आ रहा है, माइनस ऑफ g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2. दिस इज द स्लोप. ओके, नाउ अब हमें प्रूव करना है कि ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1. तो हम क्या करते हैं, दोनों का सेंटर्स आइडेंटिफाई करते हैं. O1 इज माइनस g1 कॉमा माइनस f1, O2 इज माइनस g2 कॉमा माइनस f2. तो इसका स्लोप आ रहा है m2, नाम रख देते हैं, यह आ रहा है बच्चों f1 माइनस f2 अपॉन g1 माइनस g2. So we can see that m1 into m2 is -1. So both lines are perpendicular. तो याद रखिएगा रेडिकल एक्सिस किसके परपेंडिकुलर होती है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स. ओके, नेक्स्ट, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स अ थर्ड सर्कल ऑर्थोगोनली, यानी दो सर्कल है वो एक तीसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं. यानी अगर इसका फिगर देखें तो कुछ ये है, ये एक सर्कल है, ये एक दूसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली और इसी सर्कल को एक तीसरा सर्कल ऑर्थोगोनली कट कर रहा है. देन रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू सर्कल्स विल पास थ्रू सेंटर ऑफ द थर्ड सर्कल. ओके, अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं, याद रखिएगा वैसे. अब देखिए, मान लीजिए फर्स्ट सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस g1x प्लस ट्वाइस f1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस g2x प्लस ट्वाइस f2y plus c2 is equal to 0 and the third circle is x square plus y square plus twice g3x plus twice f3y plus c3 is equals to 0. Now अब इस ये सर्कल फर्स्ट सर्कल थर्ड सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है. सो वील गेट अ रिलेशन ट्वाइस g1 g3 प्लस ट्वाइस f1 f3 is equals to c1 plus c3. Now let's say this is equation number 4. Similarly, second circle भी third circle को orthogonally कट कर रहा है, तो twice g2 g3 plus twice f2 f3 is equals to c2 plus c3. Let's say this is equation number 5. Now if we subtract 4 from 5, what we'll get, twice g1 minus g2 g3 plus twice f1 minus f2 into f3 is equals to c1 minus c2. इनको इधर ट्रांसफर करें तो विल गेट माइनस ट्वाइस g1 माइनस g2 इंटू g3 माइनस ट्वाइस f1 माइनस f2 इंटू f3 प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास. अब हम फर्स्ट और सेकंड सर्कल की अगर रेडिकल एक्सिस निकालते हैं यूजिंग s माइनस एच डैश, सो व्हाट वी आर गेटिंग, ट्वाइस g1 माइनस g2x प्लस ट्वाइस f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल्स टू 0. If we compare, then we can see x is equals to हमें क्या मिल रहा है, माइनस g3
and y is equals to minus f3. That is what? That is center of the third circle. So याद रखिएगा कि अगर दो सर्कल एक तीसरे सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, then the radical axis of the two circles passes through the center of the third circle. Moving on, the radical axis of three circles whose centers are non-collinear taken in pair are concurrent. देखिए तीन सर्कल हमारे पास हैं. पहली चीज, इनके सेंटर्स कोलिनियर नहीं हैं, यानी ये सर्कल्स कुछ इस तरह से हैं. तो इनकी रेडिकल एक्सिस आर कॉन्करेंट. These radical axis will be concurrent. The intersection point of radical axis is called the radical center. इस पॉइंट को हम कहते हैं बच्चों रेडिकल सेंटर. तो देखिए अब रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? जहां से दो सर्कल्स पर टेंजेंट सेम हो. तो इस पॉइंट से इन दोनों सर्कल पर टेंजेंट सेम होगी और इन दोनों पे भी, यानी वील से रेडिकल सेंटर इज द पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स ड्रॉन टू थ्री सर्कल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, चलिए अब देखते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं. देखिए हमने सर्कल माने फिर से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस g1x प्लस ट्वाइस f1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस g2x प्लस ट्वाइस f2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस g3x प्लस ट्वाइस f3y प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0. नाउ अब हम रेडिकल एक्सिस निकालें फर्स्ट टू सर्कल्स की, तो विल गेट ट्वाइस g1 माइनस g2 इंटू x प्लस ट्वाइस f1 माइनस f2 इंटू y प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड सर्कल विल गेट ट्वाइस g2 माइनस g3 इंटू x प्लस ट्वाइस f2 माइनस f3 इंटू y plus c2 minus c3 is equal to 0, and the last one twice g3 minus g1 into x plus twice f3 minus f1 into y plus c3 minus c1 is equals to 0. ओके, नाउ अब हमें प्रूव करना है कि ये तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट हैं. तो विल फाइंड द डिटर्मिनेंट g1 minus g2 f1 minus f2 c1 minus c2 g2 minus g3 f2 minus f3 c2 minus c3 g3 minus g1 f3 minus f1 and c3 minus c1. अब देखिए इस डिटर्मिनेंट में हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2 प्लस r3. तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 0. तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया, हेंस वी कैन से लाइंस आर कॉन्करेंट. Okay, then intersection point of these radical axis is called radical center, and radical center से तीनों टेंजेंट पे लेंथ होगी सेम टेंजेंट की. ओके, अब देखिए इस लेंथ को हम मान लेते हैं एक रेडियस. ओके, और ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करें विच पासेस थ्रू whose center is radical axis center and radius is length of the tangent. Then this circle is known as radical circle. एंड इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इट इंटरसेक्ट्स ऑल द थ्री सर्कल्स ऑर्थोगोनली. ये तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ थ्री सेंटर्स आर कोलिनियर देन देयर रेडिकल एक्सिस विल बिकम पैरेलल. देखिए अगर तीन सर्कल्स के सेंटर्स कोलिनियर हो गए तो इनकी रेडिकल एक्सिस कुछ इस तरह से होगी एंड दैट विल बिकम पैरेलल. So radical center will not exist. Okay. Next point. Radical center of three circles described on the sides of a triangle as diameter is the orthocenter of the triangle. देखिए पहले हम समझते हैं क्या लिखा है. ये कह रहे हैं भाई एक ट्रायंगल है, इसकी साइड्स को डायमीटर लेके हमने तीन सर्कल्स बनाए, तो जो उनका रेडिकल सेंटर है दैट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल. ओके, अब रेडिकल सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रेडिकल एक्सिस एंड ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स. सो इफ आई प्रूव दैट रेडिकल एक्सिस इज एल्टीट्यूड then it is proved that radical center is the ortho center.
अब देखिए रेडिकल एक्सिस को हमें प्रूव करना है, एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड है मतलब वो कहां से किसके परपेंडिकुलर होगा, इसके, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे एक सर्कल बनाया आपको समझाने के लिए। लेट्स से दिस इज अनदर सर्कल नाउ। अब आप देखिए ये जो सेंटर है इसका, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये रेडिकल एक्सिस इन सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ये अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स। ओके, अब नाम दे देते हैं ए बी सी। This is PQ. Then we know that we have proved that this radical axis is perpendicular to PQ. Okay. Now, in the हमने चाइल्डहुड में पढ़ा था कि PQ मिड पॉइंट थ्योरम, PQ इज पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC, यानी अगर कभी हम मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो दैट इज पैरेलल टू बेस, सो वी कैन से दैट रेडिकल एक्सिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू BC. Radical axis is also perpendicular to BC. Clear? Okay. So we have proved that radical axis is altitude. तो ऐसे तीनों रेडिकल एक्सिस एल्टीट्यूड होंगी, तो तीनों रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी रेडिकल सेंटर विल बिकम ऑर्थो सेंटर. ओके, सो रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स. Then the second property was if two circles intersects a third circle, then the radical axis of the two circle passes through the center of the third circle. Then बच्चों अगर रेडिकल सेंटर्स कोलिनियर नहीं है तो तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होती हैं और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, रेडिकल सेंटर. रेडिकल सेंटर को सेंटर ले लीजिए और लेंथ ऑफ द टेंजेंट को रेडियस, तो एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल को हम बोलते हैं रेडिकल सर्कल, और ये तीनों सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करता है. अगर सेंटर्स कोलिनियर हो तो रेडिकल सेंटर विल नॉट एग्जिस्ट. एंड द लास्ट, radical center of the circles described on the sides of a triangle as diameter is the orthocenter of the triangle. तो देखिए हमने बात की रेडिकल एक्सिस क्या होता है, डिफरेंट पोजीशन में रेडिकल एक्सिस क्या है, एंड देयर सम प्रॉपर्टीज. नाउ व्हाट फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ फॉलोइंग सर्कल्स. तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 4x² प्लस 4y² माइनस 12x माइनस 12y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0. एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा बच्चों 4x² प्लस 4y² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट माइनस 9x माइनस 12y प्लस 55 इज इक्वल्स टू 0. सो 9x प्लस 12y minus 55 is equals to 0. This will be the equation of radical axis. Find the radical center of the following set of circles. देखिए आपको 3 सर्कल दिए हैं तो हमें रेडिकल एक्सिस निकालनी पड़ेगी. तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड सर्कल को सॉल्व करें तो हमें मिल रहा है बच्चों x² प्लस y² माइनस 16x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0. और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस y² माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0. इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिस इज 60. सो सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल रहा है माइनस 4x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0. सो x की वैल्यू आ रही है बच्चों 33/4. तो x कोऑर्डिनेट आएगा 33/4. ऐसा एक ही ऑप्शन है तो आप ऑप्शन नहीं लगा सकते हैं, बट हम क्वेश्चन पूरा करते हैं. अब हम लेते हैं बच्चों सेकंड और थर्ड सर्कल. सो x² प्लस y² माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0. और दूसरा सर्कल है हमारे पास x² प्लस y² माइनस 12y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट माइनस 12x प्लस 12y प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो माइनस हमारे पास इक्वेशन आ गई 12x माइनस 12y माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0. फाइन. अब इसमें हम x की जगह रख देते हैं बच्चों 33/4.
So 12 into 33 by 4 minus 12y minus 19 is equals to 0. So 12y is equals to हमारे पास आएगा 99 minus 19 is equals to 80. So we are getting y is equals to 20 by 3. So हमारा x coordinate हो गया 33 by 4, y coordinate 20 by 3. So radical center will be 33 by 4, 20 by 3. सिंपल, हमने दो रेडिकल एक्सेस निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Coordinates of a point from where the tangents drawn to three circles are equal in length. तो देखिए, ये इनडायरेक्टली हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, रेडिकल सेंटर. तो रेडिकल सेंटर निकालना है तो पहले हमने दोनों इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलेगा 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. 2x minus 2y minus 2 is equals to 0. So we are getting x minus y. एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं. x square plus y square plus 2x plus 4y minus 6 is equals to 0 and x square plus y square plus 4x subtract कीजिए 2x minus 2y minus 2 is equal to 0. So we are getting x minus y minus 1 is equals to 0. That is equation number 1. अब हम अगर थर्ड सर्कल भी ले लेते हैं तो थर्ड सर्कल हमारे पास है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. लेट्स से इक्वेशन ये हमारे पास है थर्ड सर्कल, ये है फर्स्ट सर्कल, ये है सेकंड सर्कल, तो इसका नाम हम इक्वेशन 4 रख देते हैं. अब मैंने क्या किया, थर्ड माइनस सेकंड करते हैं तो हमें मिलेगा 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 1. अब y इज इक्वल टू 1 हम इक्वेशन 4 में रख देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल रही है 2. तो हमारा आंसर हो जाएगा 2,1. सो रेडिकल सेंटर विल बी 2,1. सो आज के वीडियो में हमने देखा रिगार्डिंग रेडिकल एक्सिस एंड देयर प्रॉपर्टीज. सो डू रिवाइज दीज टॉपिक्स. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.